Tell me. We are going with the topic close test, and we have to find the most suitable word. Okay. Now, before we start the close test, you can see there is a paragraph displayed to you. Isn't that so? क्या एक पैराग्राफ दिख रहा है आप लोगों को? Right? Yes, sir. Now, see, when we talk about any paragraph, the paragraph can be, we have to understand what type of paragraph will be given to you, right? So before we start, Right, sir. right, so we'll have to understand what type of paragraph could be given to you, right? The paragraph means the mood of the paragraph. When we say about the mood of the paragraph, what does it mood? Mood means either it is positive, either it is negative, or it is neutral. When we say neutral, it means that it can be informational. What do you mean by informational? Or it is just explaining or about nature, environment, anything. But there can be certain things, like if you talk about global warming, its advantages, its disadvantages, right? Unemployment. So there are certain number of topics which we have to keep concern that what type of paragraph will be given to us, right? So the paragraph can be, if we'll talk about the theme of the paragraph or the category of the paragraph, it can be, you can write down the points, right? So the paragraph can be taken from environment, right? Social issues. Are you writing, all of you? लिख रहे हैं सब लोग? Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. Right? Yes, sir. Social issues, right? Banking and economy, right? Next, your will be electronics and IT, electronics and information technology, or we also ensure that there are cyber crime related topic, or we can say IT laws, right? Next is your political or government. Next, I hope my voice is clear to all of you. Yes or no? Yes. Next is your story based, right? The paragraph will be can be given in the form of story based, right? Next will be, as we talk about banking, it also refers to foreign direct investments. It also refers to Reserve Bank of India, right? Next is your international relations, or we tell about the relation of one country with other countries, Another country. another countries. International, right? Now we talk about economic issues, right? Economic issues also refers to, example we talk about is poverty, we talk about unemployment. There are lot of topics they can give you, right? Next is your health sector, medicines, or we can say health and insurance, right? When we talk about economy part, we also talk about GDP, gross domestic product, NNP, NDP. net national product, NNP, right? Net domestic product. And we can also, in economic issues, you can write inflation. So the topic can be given in various categories, right? Next, medicine, health and insurance. When we talk about environment, there are certain number of points also, that is refers to like pollution. When we talk about pollution, suppose a paragraph is given in pollution, will you take it is in a positive mood, negative mood or a neutral mood? Tell me. अगर पॉल्यूशन का हमारे पास, पॉल्यूशन तो नेगेटिव होता है ना? यस और नो? ठीक है ना? Yes, sir.
तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द लॉट ऑफ टॉपिक्स, जो बहुत सारे हैं, तो इतना सारा चीज़ लिखा पाना भी टेक्निकली हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज वी हैव टू गो विथ ईच एंड एवरी टॉपिक. सो प्रिफरेबली स्टार्ट विथ नाउ सी. And one point we have missed it is your agriculture. However, agriculture comes under economy, right? Agriculture comes under economy. Or we talk about development also. When we say about development, it can be in three sectors. Primary sector, which mainly refers to agriculture, fisheries, right? Primary sector. Secondary and tertiary. Secondary and tertiary. Yes. And tertiary sector. So they can ask you any type of passage, right? When we talk about this thing, we talk about banking sectors, right? Transportation and anything, right? We can write transportation as well. So without losing time, we will move to the पैसेज. ओके, ठीक है, स्टार्ट करें. यस और नो. चलिए नाउ, तो व्हाट आर द की स्ट्रोक्स बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग ए पैराग्राफ. व्हेन वी स्टार्ट रीडिंग ए पैराग्राफ, वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट इज द मूड दैट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल. इज दैट क्लियर टू यू, ऑल ऑफ यू? यस और नो? यस और, ठीक है ना? ठीक है. पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल. लेट मी टेल यू कि अगर कोई पैराग्राफ है जो सारा निगेटिव, मतलब पूरा पैराग्राफ निगेटिव है, जैसे पोवर्टी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो जो हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, क्या हम वो पॉजिटिव ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे या निगेटिव ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? बताइए. नेगेटिव सेंटेंस यूज़ करेंगे. डिड यू गेट माई पॉइंट और नॉट? यस और नो? हाँ जी, यस और नो. नेक्स्ट, first point we have to consider what is the mood of the paragraph. Second point number 2, we have to understand the tense used in the paragraph. Tense, whether it is used as a present tense, whether the sentence is written in past, I mean the entire paragraph is written in past, or the entire paragraph is written in is advisory or is to be considered in the future tense. Is that clear to all of you? Yes or no? Tell me. समझ में आ रही है बात? Yes sir. अरे कोई ऐसा है जिसको हवा नहीं लग रहा है मैं पूरी इंग्लिश में बोल रहा हूँ तो? कोई तो बता. नहीं सर, कोई तकलीफ नहीं है. कोई तकलीफ नहीं, बढ़िया चल रहा है. ठीक है, तो आपको फर्स्ट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि पूरा पैराग्राफ पॉजिटिव है, निगेटिव है या न्यूट्रल है. ठीक है. अब जैसे मैं बोलता हूँ कि हेल्थ एंड एक्सरसाइज, व्हेन यू टॉक अबाउट एक्सरसाइज, एग्जाम्पल हेल्थ एंड एक्सरसाइज, तो टेल मी कि कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, इससे हमारा बॉडी क्या होता है, फ्रेशन अप होता है. और ये सब मुझे बताओ, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है, ये इन्फॉर्मेशन? पॉजिटिव. मुझे पॉजिटिव. ठीक है. अगर हम किसी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बता रहे हैं, उसके एडवांटेजेस बता रहे हैं, तो पॉजिटिव है. कुछ चीज़ें हैं जैसे हम वाटर का बेनिफिट बता रहे हैं तो हम बताते हैं, टोबैको का है उसका हम निगेटिव इफेक्ट बताते हैं. और कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ पे वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि इंटर रिलेशनशिप्स, तो वो न्यूट्रल पैराग्राफ भी हो सकता है. तो चलिए, हमें टेंस को ध्यान में रखना है, पैराग्राफ का टेंस देखना. वी हैव टू सी द टेंस ऑफ द पैराग्राफ. टेंस मीन्स इफ द पैराग्राफ इज इन past tense, so while we are selecting the words from the given options, we have to keep in mind the words should be in past. Is that clear to all of you? Yes or no? If the paragraph is moving in a present tense, then we have to keep in mind that we will move in the, we'll pick the words which is in the present tense. If the word is in future tense or it is in past tense, so we have to use in the past tense. Now before starting, I would like to last point what we have to keep in mind. If the word is moving in a present tense, अगर कोई वर्ड प्रेजेंट टेंस में चल रहा है सेंटेंस या पैराग्राफ, तो हम वर्ब का ज़्यादातर कौन सा यूज़ करेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. यस और नो? समझ में आ रही है बात? यस और नो?
Yes. Yes. And if the sentence is moving in past, I mean the paragraph is in past, then we'll use the verb second or verb third. Is that clear to all of you? Yes or no? Haji? Yes, tell me. Is that clear to all of Yes, you? sir. Yes or no? I'm just Yes, sending sir. the Yes, sir. screenshot to all of you. And one last point I have to explain, and then we'll move to the paragraph. Now, so the tense we have to keep in mind in accordance with the sentence. Now, the last thing which we have to consider is the structure of the sentence. As we know, the structure of the sentence is written in structure. What is the structure of the sentence? Tell me. जैसे Ram, very simple. I am just reading Ram is going to market. I am using a very simple sentence. Going to market. Tell me. मुझे बताइए, अगर यहाँ पर फिलर्स होता इज की जगह पे, तो आप क्या लगाते? वर्ब लगाते. यस और नो? यस और नो? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, एंड दिस इज गोइंग. दिस इज मेन वर्ब. यस और नो? एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट. So ensure that कि if subject is given and immediately a filler is given, then we have to keep in mind the verb should be taken. क्या subject के just बाद adjective आता है? Tell me. क्या subject के बाद adjective आता है? No, sir. यानी एक बात और समझ में आया कि if there is a subject, राम, राहिम, श्याम, रानी, उससे जस्ट पहले आई एम जस्ट गिविंग यू सम ट्रिक्स. उससे पहले क्या आ सकता है मुझे बताओ? क्या सब्जेक्ट से पहले वर्ब आता है या सब्जेक्ट से पहले क्या आ सकता है? जैसे मैं बोल सकता हूँ इंटेलिजेंट राम. इंटेलिजेंट राम, राइट? और वी कैन राइट जीनियस राम. मुझे बताइए सब्जेक्ट से पहले हमारे पास क्या हो सकता है? हेल्पिंग वर्ब. पहली बात, क्या हमारे सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल आ सकता है? अगर प्रॉपर नाउन नहीं है तो आर्टिकल आ सकता है. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. आ सकता है. आर्टिकल में ए, एन और द आ सकता है. इसमें कोई दिक्कत नहीं. अच्छा, एक बात है, लेकिन हमें एक बात और है कि सब्जेक्ट के जस्ट तुरंत बाद क्या आएगा? एक बात तो कंफर्म, क्या आएगा? 100% बताओ. Auxiliary verb. वर्ब आएगा. ऐसा कोई राम के बाद वर्ब आएगा, ये बात की तो गारंटी है. अब इस बात से हम इंश्योरेंस स्टार्टिंग में हम नहीं बता सकते कि मेन वर्ब आएगा या क्या आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब. जरूरी नहीं कि सेंटेंस, जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको. अब मैं जैसे मैं बोला राम गोज टू मार्केट, राम गोज टू स्कूल, तो मुझे बताओ यहाँ पे तो ऑक्सिलरी वर्ब आया ही नहीं. तो एक बात कंफर्म है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब ही आएगा. इस बात का कहीं ना कहीं हम चीज़ों को समझ सकते हैं. क्या ये बात समझ में आ रहा है? When we'll pick the words, I mean the words from here, right? Ensure that whether we are picking the noun or we are picking the verb. Is that clear to all of you? Yes or no? Tell me. Yes. Clear है सबको? इसमें कोई Yes, दिक्कत sir. नहीं है. ठीक है. Now एक बात और, अब मुझे बताइए, जैसे मैं बोलता हूँ नेशन, नेशन. टेल मी व्हाट इज दिस वर्ड? ये नेशन क्या है? नाउन है? यस और नो? अगर मैं, अब मुझे बताइए नाउन से पहले हम क्या लगा सकते हैं? एडजेक्टिव लगा सकते हैं. रिच नेशन. बोलिए बोलिए. यस और नो? टेल मी. अरे बोलो. अगर नेशन मेरा Yes, sir. नाउन है तो एक बात और समझ में आया, नाउन बोलो या सब्जेक्ट बोलो. बट टेक्निकली सब्जेक्ट बोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट एक ऐसा वर्ड होता है जो हमेशा स्टार्टिंग में यूज होता है. तो ऐसा हम कभी ज़रूरी नहीं कह सकते कि हमेशा सब्जेक्ट ही हो. नाउन, कोई भी नाउन से पहले हम एक बात समझ सकते हैं. what we can see here, that we can use an adjective. Is that clear to all of you or not? Tell me. Means before Yes, sir. noun an adjective can be used, after noun a verb will be used. Is that clear to all of you? Yes or no? Tell me. Yes, Yes. sir. Before noun we can use an article, that's not a problem, right? After subject we need a verb. Yes or no? Right? And to connect we can use, to connect the sentence or make it complete, we can use conjunction preposition as per the requirement. Yes or no? So shall we start now?
तो मैं आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, देन विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन पार्ट. Okay. As you can see, this cloze test was asked in the examination. I have not mentioned this cloze test was asked in the examination 2018, right? And 10 questions was asked from this cloze test, right? Now tell me what was the first step I told you before reading a passage. Tell me, what was the first word, first point what we have to keep in mind? Mood. Mood. वेरी गुड. तो चलिए कि हम लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे, वी विल गो बाद में हम लोग थोड़ा, आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू द टेक्निक एंड ट्रिक एज वेल. बट इंडिया इज बेसिकली ऑफ रूरल masses. 74% lives in villages. When one talks of a village, it is not just a few of 100 people live together. A village in India used to be an independent socio-economic based on a decentralized socio-economic system built not on a but a complementary structure. If one studies India's history of the past 200 years, especially when the British first came, one finds the truth of the statement. The new rulers undid the very of rural society because they knew that India could not be unless the village was completely destroyed. Thus it is that the East India Company introduced production into village life and consequently smashed its system of cooperation. And tell me, we have gone with the paragraph roughly. What did you interpreted from this paragraph? क्या लग रहा है इस पैराग्राफ को देख के क्या हो रहा है? बेसिकली मतलब विलेज के बारे में बता रहे हैं. Okay, tell me whether it is positive, negative or neutral. न्यूट्रल जैसा लग रहा है. ऐसा कुछ ज़्यादा पॉजिटिव भी बात नहीं कर रहे, ज़्यादा निगेटिव भी बात नहीं कर रहे. कहीं ना कहीं हमें इंट्रोडक्टरी लग रहा है, मतलब कुछ इंट्रोडक्शन देना चाह रहा है या फिर एडवाइजरी की तरह हम कर सकते हैं. यस और नो? ओके, ठीक है ना. मतलब इंफॉर्मेशनल, इट इज़ रिलेटेड टू सम इंफॉर्मेशनल थिंग एंड अबाउट हिस्ट्री ऑफ. जैसे मैंने आपको बताया कि, हालांकि मैंने मिटा दिया है, कि आई हैव टोल्ड यू दैट द क्वेश्चन विल बी कैन बी फ्रॉम व्हाट social issues and it can be political and government. So you can also mention history of any country or history of any product or history of any company, right? So do you think that it is related to something which is related to the history of India? Yes or no? Yes sir. So it is, कहीं ना कहीं हम ये बात समझ पाते हैं कि कहीं ना कहीं क्या है, ये हिस्ट्री है. और हिस्ट्री बताया किसका जा रहा है? इंडिया का. और इंडिया का हिस्ट्री बताया जा रहा है कि इंडिया के लोग किस तरह से लोग रहते थे. विलेजेस के बारे में बताया जा रहा है, फिर बाद में कुछ कंपनी आई और उसके बाद क्या चेंजेस आए, यही बताया जा रहा है. यस और नो? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? ओके, इज दैट क्लियर? ओके, शैल वी स्टार्ट नाउ? ओके, नाउ द फर्स्ट सेंटेंस इज इंडिया. ओके, मूड हमें समझ में आया. अब मुझे बताइए कि ये सेंटेंस, मैंने आपको अगला पॉइंट क्या बोला था? टेंस. अब मुझे बताइए टेंस कैसा है? देखिए, Past tense. एज यू कैन सी, was. यस और नो? however there is using is, बट अगर हम चले past 200, do you see these words makes you aware that sentence is used in past tense. मीन्स कहीं ना कहीं पास्ट की बात हो रही है. और वैसे भी जब हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, देखो डिस्टर्बेंस किसी के साइड से आ रहा है तो म्यूट कर लो अपने आप को. आपके आसपास कोई भी लोग हो, कुछ भी बोल रहा, पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए आपके घर में. समझ में आ रही बात? ओके, सो कहीं ना कहीं इफ यू टॉक अबाउट समहाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट एंड एनीथिंग रिलेटेड टू हिस्ट्री. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? यस और नो? नाउ yes sir. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ यू कैन डिटेक्ट. सी, एक वर्ड लिया है न्यू. मुझे बताओ, न्यू जो वर्ड है, वर्ब का कौन सा फॉर्म है? Second form. सी, द वर्ड केम कौन सा फॉर्म है? कम, केम. Yes or no? Tell me. Yes or no? Tell me. So see, destroyed.
डिस्ट्रॉय करने वाले नहीं है, डिस्ट्रॉयड कौन सा फॉर्म है वर्ब का? सॉरी, वर्ब सेकंड भी बोल सकते, थर्ड भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। टेल मी नेक्स्ट। स्मैश्ड वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म बोलो, थर्ड फॉर्म बोलो, जो बोलो चलेगा। इज दैट क्लियर और नॉट एज ऑल ऑफ यू कि हाउ टू अंडरस्टैंड ए पैराग्राफ वेदर द सेंटेंस इज गिवन in a past tense, I mean the paragraph is running in a past tense. Is that clear to all of you? First of all we have got with the mood, then we got with the tense, now we'll go with the theme and we'll start with the questions. Are you ready all of you? Yes or tell me? Yes. Yes, yes, Okay, now shall we start now? India is basically dash of rural masses. Now another trick, देखिए आप जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं एग्जाम में, वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि ग्रुप सही है तो टिक लगा देते हैं, हाँ ग्रुप ऑफ रूरल मासेस, बट दिस इज वेरी बैड। यू हैव टू यूज, सी देयर आर टू वेज टू अप्रोच क्लोज टेस्ट। द फर्स्ट अप्रोच इज योर ऑप्शन सिलेक्शन मेथड। डिड यू गेट माई पॉइंट? इसका मतलब क्या मैं बताता हूँ आपको। और दूसरा प्रोसेस है ऑप्शन रिजेक्शन मेथड। ऑप्शन रिजेक्शन मेथड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्शन सिलेक्शन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्शन रिजेक्शन? ऑप्शन सिलेक्शन का मतलब क्या है, आप क्या करते हो एग्जाम में कि आपको लगता है ग्रुप ठीक है, हाँ लगा दो भाई, वेरी बैड। आपको क्या करना है, इसमें से पहले दो ऐसे निकालने हैं वर्ड जो नहीं हो सकते। क्या ये बात समझ में आ रहा है? यस सर। यस और नो बोलिए। आपको पहले वो बताना है जो कभी भी नहीं हो सकता, फिर दो ऐसे होंगे जो काफ़ी क्लोज लगेंगे। अब उसके बाद उन दोनों में डिसाइड करना है कि कौन सा हमें टिक लगाना है। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? यस और नो टेल मी। yes sir. राइट, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग, इंडिया इज बेसिकली डैश ऑफ रूरल मासेस। टेल मी, इंडिया बेसिकली क्या है? Nation. कंट्री है क्या? मुझे बताओ, इंडिया एक कंट्री है? यस और नो? हाँ कंट्री है। कंट्री है, तो यहाँ पर Yes, sir. कंट्री आना चाहिए, बट अगर हम बात करेंगे ग्रुप नहीं है ये क्या है? कंट्री। एक्चुअली वर्ड तो आ नहीं सकता, इज बेसिकली एक्चुअली ऑफ रूरल मासेस। तो मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछता, चलो तुमने तो सही बताया या गलत बताया वो तो हम डिस्कस करेंगे, पहले तो मुझे ये बताओ ईमानदारी से कि कौन सा दो ऐसा है जो हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता है कि ये दोनों ऑप्शन हो सकता है, हो जाए। एक्चुअली एंड ग्रुप। सर ऑप्शन ए और बी। ये नहीं हो सकता। यस एक बार रीच। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। ग्रुप हो सकता था, ग्रुप हो सकता था, लेकिन देखो मैं बोलूँगा इंडिया इज बेसिकली डैश ऑफ रिच ऑफ रूरल मासेस। मुझे बताइए रिच कब लगाते हैं? जैसे मुझे बताइए राम इज रिच, राम इज रिच। अब रिच से पहले क्या है मुझे बताओ? ऑक्सिलरी वर्ब है, यस और नो? बट यहाँ पर क्या है? बेसिकली। ऐसा चलेगा? बोलिए, एडजेक्टिव चलेगा, एडवर्ब चलेगा, आपको चलेगा? बोलिए, समझ में आ रही बात? तो एक बात तो समझ में आना चाहिए आपको कि यहाँ पर रिच तो नहीं आएगा, एक्चुअली भी नहीं आएगा, तो यानी ग्रुप हो सकता था, अब नेशन हो सकता था। तो अब हम लोग वी आर वेरी क्लोज टू आवर आंसर्स, राइट? फिर हम क्या करेंगे कि भाई ग्रुप होगा या नेशन होगा। तो हमें पता है कि रूरल लोग मासेस ज़्यादा हैं, 70% लोग कहीं ना कहीं 60 से 70% लोग गांव में अभी भी रहते हैं, इसमें कोई ख़राबी नहीं है, है ना? तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? नेशन। यस और नो? ग्रुप नहीं आएगा। क्लियर है? तो देखिए क्लोज टेस्ट मतलब बेस्ट सेलेक्ट करना हो ग्रुप और नेशन में, तो किसको सेलेक्ट करेंगे आप बताइए? सर हाँ बोलिए। नेशन कैसे, मुझे नहीं समझ रहा है। अरे मतलब ग्रुप भी हो सकता था ना। नेशन का मतलब होता राष्ट्र, नेशन का मतलब हाँ, होता वो। राष्ट्र, और ग्रुप का मतलब क्या होता है? ग्रुप को हिंदी में क्या बोलते हैं?
समूह बोलते हैं, समूह। क्या बोलते हैं? ग्रुप को हिंदी में समूह। समूह। ठीक है, समूह। ठीक है ना? तो मुझे बताओ, हमारा देश राष्ट्र है या समूह है? क्या? सर राष्ट्र है। तो राष्ट्र है ना, तो यहाँ राष्ट्र लगेगा ना। ठीक है, ओके। ठीक है ना? चलिए, shall we move to the next part? Okay, all right, tell me yes or no. चलिए, अब मैं आपको एक पॉइंट और इसमें बताना था आपको। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, अगर मैं बोलता ये कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो आप क्या लिखते? इंडिया इज ए कंट्री लिखते कि नहीं लिखते? टेल मी। इन वेरी सिंपल टर्म्स यू वुड हैव रिटन इंडिया इज ए कंट्री। यस और नो बोलो। यस सर। यस सर। अब ये बेसिकली है, ऑफ है, रूरल मासेस है, तो क्या इससे डर जाओगे? तो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब कोई सेंटेंस कॉम्प्लिकेटेड हो ना, तो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स को हटा दो और उसको सिंपल वर्ड्स में कन्वर्ट कर दो। आपका ही बहुत आसान तरीके से सही सेंटेंस पे सही वर्ड को पिक कर लेंगे। ठीक है, शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस और नो, टेल मी। तो व्हाट अप्रोच वी हैव टू यूज? ऑप्शन सिलेक्शन मेथड और ऑप्शन रिजेक्शन मेथड? टेल मी, बोलो कौन सा मेथड? सिलेक्शन। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन रिजेक्शन मेथड। पहले दो तो गलत कर देना, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, आपको फटाक से देखते हो पहला और टिक लगा देते हो, दूसरा देखते हो टिक लगा देते हो, पता चला कि चौथा वर्ड और भी अच्छा सूटेबल था। तो आपको दो सेलेक्ट कर ऐसे देखने हैं, वर्ड को पिक करने हैं जिसको जो कभी भी नहीं हो सकता उसका आंसर, कभी भी आंसर नहीं हो सकता। और फिर जो दो बचता है उसमें सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट यू हैव टू अप्रोच, स्टेप नंबर 2 विल बी योर ऑप्शन रिजेक्शन, स्टेप नंबर 1 विल बी योर ऑप्शन रिजेक्शन। दो एलिमिनेट कर दो आप, मैं बता रहा हूँ ना, गड़बड़ मत कर देना। और फिर उसके बाद जो ऑप्शन बचेगा उसके अंदर से 50-50 मैच। क्लियर है? तो केबीसी का 50-50 से आप दो रिजेक्ट कर दो और फिर उसके बाद चलिए आगे बात करते हैं, या फिर लाइफलाइन यूज कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉइंट देखते हैं हम लोग। सो 74%। हाँ बोलिए। यस टेल मी। सर आप सेकंड क्वेश्चन पे जा रहे हो, मैं मीनिंग पूछ सकता हूँ दो वर्ड का? हाँ बोलो। क्लस्टर का और हैबिटेशन का मीनिंग क्या होता है सर? बताऊंगा यार, ऐसा मैं छोड़ूंगा ही नहीं मैं सबका मीनिंग बताऊंगा, डोंट वरी। ऐसे में थोड़ी बोलूँगा कि टिक करो, अभी स्टार्ट कहाँ किया है। इसमें तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं था। बताने की ज़रूरत थी कि रिच का मतलब अमीर होता है, नेशन मतलब राष्ट्र होता है, ग्रुप मतलब समूह होता है, एक्चुअली का मतलब क्या होता है? सीधे तरीके से देखा जाए तो, है ना? तो ये तो इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, एक्चुअली रियली ऐसे आप बोलते हो। तो अब हम क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब क्या होता है बताओ? हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लस्टर? पहले एक एक करके डिस्कस करें। ग्रुप। क्लस्टर का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पीपल। ये बात कैसे पता चला पीपल है? क्लस्टर का मतलब क्या है? अरे बोलो। पीपल भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, थिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब सीधा सीधा बात है ये। नंबर ऑफ थिंग्स हेल्ड एट सेम टाइम टुगेदर। देखिए ये भी क्या है? ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट वर्ड इज हैबिटेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैबिटेशन? हैबिटेशन बोलिए, बताओ। अरे बोलो। रहन सहन ना। मुझे बताइए कि हम लोग जमीन पे रहते हैं, पानी में रहते हैं? पानी पे। जमीन पे रहते हैं, यानी लिविंग इन ए प्लेस। ठीक है, जैसे हम घर पे रहते हैं, है ना? लेकिन आप देखते होगे कि रास्ते में, कोई मजाक मत करना अभी, कुत्ता लोग रास्ते में भी सो जाता है, बट उसका कोई घर होता भी है और नहीं भी होता है। ठीक है ना? चिड़िया को देखते हो आप कि वो घोंसला बना के रहती है। तो हर का रहने का एक क्या है? अब मछली पानी में ही रहेगी क्योंकि नेचर नहीं वैसा बनाया मछली को, है ना? देखो मैंने बोला मजाक नहीं करने के लिए अभी तुमको, अनिरुद्ध। ओके सर। कोई मजाक करोगे सीधा मतलब रिमूव कर दूंगा तुमको मैं। ओके। ठीक है, तो आपको समझ में आया? हैबिटेशन मतलब जहाँ पे हम रहते हैं। कॉम्बिनेशन शायद रिकॉर्डिंग बंद होगी। बंद हो गया क्या? एक सेकंड।
नहीं चल तो रहा है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन? To mix two things मिक्सचर together. बोल सकते हैं सर, मिक्सचर बोल सकते हैं। कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या होता है हिंदी में? Combination दो of two चीजों को मिला two कर different करते हैं। things. कुछ मिलाकर या हाँ, मिक्सचर। मतलब मिक्सचर यानी मिक्सचर कह सकते हो, ठीक है, चलो मिक्सचर ही ले लो, या हिंदी में इसको मेल बोलते हैं, ठीक है। सर मर्जिन हो सकते हैं, मर्जिन। सीधा सीधा मिक्सचर करना है, जो भी कहना है समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। Yes. कॉम्बिनेशन का मतलब जरूरी नहीं है कि कोई दो समान ही हो, कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल भी हो सकता है, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हिंदी में अगर देसी स्टाइल में बात करें तो इसको हम बोलते हैं जोड़, है ना, जोड़ना किसी चीज़ को, कंबाइन करना, ठीक है। सम का मतलब भी क्या होता है? जोड़। सम का मतलब भी क्या होता है? जोड़। यस और नो? ठीक है, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा कॉम्बिनेशन ऑफ टू पीपल, सम ऑफ टू पीपल, मुझे बताओ कि दोनों सेंटेंस में कौन सा सही है? आदमी को जोड़ सकते हो तुम, नहीं। नहीं सर। लेकिन मैं बोलूँगा सम ऑफ पीपल, यानी कुछ एक ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कहीं ना कहीं एक साथ एक इकट्ठा हुए लोगों की बात हम कर सकते हैं। तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो 74% ऑफ द पीपल लिव इन विलेजेस, ओके। व्हेन वन टॉक्स ऑफ ए विलेज, इट इज़ नॉट जस्ट ए डैश ऑफ ए फ्यू हंड्रेड पीपल लिविंग टुगेदर, ठीक है। अगर हम गांव की बात करें तो गांव में मुझे बताइए, अगर एक गांव में कितने लोग होते हैं इन एन एवरेज? 100, 200, 300, कितने लोग होते हैं बताइए ज़रा? Depends upon the population. वो सब ज्ञानबाजी ना करो मेरे सामने। भाई कितने लोग होते हैं? 100, 150 के आसपास, 200 पकड़ लें, गाँव 200। 200 समथिंग लाइक दैट सर। उसी के आसपास रहते हैं, है ना, बराबर ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो ज़रा मुझे बताइए कि व्हेन टॉक्स अबाउट ऑफ ए विलेज, इट इज़ नॉट जस्ट ए के बाद ए डैश ऑफ, ए डैश ऑफ, देखो, एक ग्रुप ऑफ, ए हैबिटेशन ऑफ, ए कॉम्बिनेशन ऑफ, ए सम ऑफ। मुझे बताओ कि हम कोई अलग अलग ग्रुप को कंबाइन करने की बात करें या सिंगल ग्रुप की बात हो रही? तो मुझे इतना बताओ कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता? हैबिटेशन। Habitation. Habitation. कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, वेरी गुड, सोच समझ के जवाब और दो। सर हैबिटेशन नहीं हो सकता सर। हैबिटेशन भी नहीं हो सकता। अरे देखो मैं बताता हूँ, अगर मैं बोलूँ क्लस्टर ऑफ कीज़, वैसे तो हम ग्रुप ऑफ कीज़ बोलते हैं, तो गुच्छे में रहना, एक घर के अंदर रहते हैं लोग, 50 लोग, ऐसा होता है? बोलो, रहते कोरोना आ जाएगा। रहते हैं। क्लस्टर ऑफ पीपल होता है जनरली, या क्लस्टर ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करते हैं हम, क्लस्टर ऑफ कीज़, बताइए, बोलो। हाँ जी, टेल मी। सर एक डाउट है इस बात में, अभी आपने जो बोला ना एक घर में 50 लोग रहते हैं, तो सर गांव में तो जितने लोग रहते हैं उनको ग्रुप ही बोलेंगे ना सर? ग्रुप है, एक समझिएगा, बात यह है कि गांव में सिर्फ इंसान ही रहता है या जानवर भी रहता है? दोनों रह सकते हैं। दोनों रह सकते हैं, दोनों रह सकते हैं, ठीक है। हाँ सर। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द पीपल, नॉट एनी अदर थिंग्स। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द पीपल मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ए विलेज, और विलेज की बात कर रहे हैं तो विलेज इज ए प्लेस। टेल मी यस और नो? एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ए प्लेस, तो कौन सा वर्ड सुटेबल है? अब बताओ जरा। हैबिटेशन। हैबिटेशन। तो आंसर क्या आएगा इसका? सम तो आएगा, हैबिटेशन। हैबिटेशन मतलब कि हैबिटेशन मतलब रहन सहन या फिर रहना लोगों का, ठीक है। तो क्या है? व्हेन वन टॉक्स ऑफ ए विलेज, इट इज नॉट जस्ट ए हैबिटेशन ऑफ ए फ्यू हंड्रेड पीपल लिविंग टुगेदर। व्हेन, मैंने पहले ही बता दिया कि लिविंग का मतलब क्या होता है। लिविंग इन ए प्लेस कौन सा टर्म के लिए यूज़ करते हैं? हैबिटेशन के लिए करते हैं। लेकिन हैबिटेशन में इंसान रहता है। हम बात करते हैं, अभी मुझे बताओ, किताबें गांव में रहती है, ऐसा बोलूँगा मैं? बोलो, अरे बोलो, रहता है क्या किताब? रहने की चीज़ें हैं, लिविंग थिंग्स है वो। तो इट कैन, क्लस्टर कैन बी यूज्ड फॉर non-living things, some can be used of non-living things, combinations can be used for non-living things, while habitation will be used for what?
living things only. Is that clear to all of you or not? Tell me. Yes, sir. So habitation word is the most appropriate, ensuring the fact that all the words have a common meaning, that is a group. कॉम्बिनेशन का मतलब भी कहीं ना कहीं ग्रुप जैसा होता है. सम का मतलब ये होता है कि इकट्ठा जोड़ करके. क्लस्टर का मतलब भी ग्रुप होता है. सब एक जैसा लग रहा है, लेकिन हैबिटेशन अलग इसलिए है क्योंकि हैबिटेशन का मतलब इंसान का रहना, यानी लिविंग थिंग्स का रहने का. तो हैबिटेशन तो हम जानवर के लिए भी बोल सकते हैं, इसमें कोई खराबी नहीं है. बट टेक्निकली habitation will be used for living things, that is for sure. Is that clear to all of you? And the other Yes, sir. words can be used for living as well as non-living things. So habitation word as used for a living things is a uniquely identified word which is most appropriate in context with the sentence given in the paragraph. Is that clear to all of you? Yes or no? Tell me. Yes, sir. Yes, sir. ओके. सो मैंने आपको पहले भी बोला था कि बहुत सारे वर्ड्स आपको देख करके लगेंगे कि एक जैसे हैं. ठीक है भाई. एनडीए के कौन कौन स्टूडेंट है भाई, बताओ, नाम बताओ जल्दी जल्दी. एनडीए का स्टूडेंट नाम बोलो, कौन कौन है आज. भाई आवाज़ नहीं आ रही है, क्या बात है, गायब हो गए क्या? वैभव. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. सागर. यस छोड़ गए है कि नहीं है? यस सर. हाँ ठीक. हेलो सर, आदित्य. आदित्य, तो बता दिया करो ना, इतना क्या मुहूर्त निकाल रहे हो क्या? लेक्चर. सर नेटवर्क प्रॉब्लम है. ओके ठीक है, चलो आगे देखते हैं. नेक्स्ट. ए विलेज इन इंडिया यूज टू बी एन इंडिपेंडेंट सोशियो इकोनॉमिक. ठीक है, गांव में, इंडिया के गांव में कहा जाता है कि इंडिपेंडेंट सोशियो. इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? बिल्कुल पूरी तरह से क्या है? आजादी. आजाद है. आजादी. आजादी नहीं, आजाद है. आजाद है किस चीज से? सोशियो इकोनॉमिक डैश. 3 वर्ड्स आपके पास वर्ड्स दिए गए हैं, जरा देखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं अपन. देखिए, सोशियो इकोनॉमिक बेस्ड ऑन ए डिसेंट्रलाइज्ड सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम बिल्ट नॉट ऑन ए डैश बट ऑन ए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर. मुझे बताओ सोशियो इकोनॉमिक के बाद आएगा क्या? तो चलिए मुझे बताइए, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं मेरे पास. पहला वर्ड है मेरे पास इंडिविजुअलिटी. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अच्छा, आप लोगों को मैंने एक ऐप डाउनलोड करने के लिए बोला था, आप लोगों ने डाउनलोड किया थिसॉरस का? थिसॉरस डिक्शनरी किया था आपने? नहीं किया? नहीं सर. तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग. तो क्या होगा उससे, क्या कि जैसे एक वर्ड देंगे ना तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. ठीक है, थिसॉरस डिक्शनरी वर्ड के मीनिंग भी आपको मिलेंगे देखने को, और साथ साथ में आपको क्या मिलेगा? हेल्प. क्या मिलेगा बताओ? उसके सिनोनिम्स भी देखने को मिलेंगे. ओके, बताइए मुझे, वर्ड क्या है? इंडिविजुअलिटी है ना. मुझे बताइए इंडिविजुअलिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट यू मीन बाय द टर्म इंडिविजुअलिटी? इंडिविजुअलिटी का मतलब होता है पर्सनैलिटी. क्या होता है? पर्सनैलिटी या कैरेक्टर. पर्सनैलिटी या क्या? कैरेक्टर. क्लियर है सबको? यस और नो? खुद की पहचान मतलब ना सर? हाँ, कह सकते हो. इंडिविजुअलिटी का मतलब हर इंसान की अपनी अपनी क्या इंडिविजुअलिटी है. ठीक है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट थे. सचिन तेंदुलकर क्या है? उसका पर्सनालिटी क्या है? कि बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है, गॉड ऑफ क्रिकेट. हाँ, तो कहने का मतलब ये है, वो गॉड वे ऑफ क्रिकेट है, वो सब ठीक है, समझ में आता है. सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हर इंसान का क्या है? एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है. अगला वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? स्पोकन और रिटन एग्रीमेंट, ये लॉ में था. कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट. क्या होता है? एग्रीमेंट. हैबिटेशन आप जान ही जाते हो. अगला वर्ड है एंटाइटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटाइटी? टेल मी. रिलेटेड टू डिस्ट्रिक्ट. एंटाइटी का मतलब क्या? बोलो जल्दी. कंपनी. कंपनी. हाँ भाई, और बोलो. एग्जिस्टेंस. ठीक है, ठीक है. क्वांटिटी, मैटर. सर उसको हिंदी में एक्सप्लेन करें ना सर, ये एंटिटी का मीनिंग. एंटिटी का मीनिंग देखो, जैसे हम बोलते हैं ना, आप लोग केमिस्ट्री पढ़े हो? केमिस्ट्री. यस सर. केमिस्ट्री पढ़े हो? सर पढ़े हैं, बहुत वीक था सर, अच्छा, इसीलिए ठीक हिंदी है. में बोलो. देखो, इसका मतलब होता है सत्ता. हिंदी में अगर हम बात करेंगे ना, इसको हिंदी में सत्ता बोलते हैं. सत्ता. एग्जिस्टेंस. एंटिटी का मतलब क्या होता है? एग्जिस्टेंस.
ठीक है, एग्जिस्टेंस। क्लियर है सबको? एंटिटी का मतलब क्या होता है? सत्ता, एग्जिस्टेंस, पावर, ठीक है। जिसे हम बोलते थे एंटिटी ऑफ ए किंग, ठीक है, किंग्स एंटिटी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई उसके खिलाफ बोलने की, है ना? तो किंग्स अब एंटिटी। तुम्हें फांसी। तो किंग्स एंटिटी का मतलब क्या होता है? हर एक इंसान की पहचान, सत्ता, पावर। समझ में आ रही बात? क्लियर है कि नहीं? बोलो। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एग्रीमेंट है। हैबिटेशन का मतलब आप जानते हो, लिविंग इन ए प्लेस। और इंडिविजुअलिटी मतलब पर्सनालिटी या फिर कैरेक्टर, ठीक है। तो बताइए, आपको मुझे 2 वर्ड ऐसे बताइए जो बिल्कुल नहीं हो सकता। इंडिविजुअलिटी कौन सा नहीं हो सकता? कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट हाँ भाई, और कोई कुछ कहना चाहता है? हैबिटेशन। सर कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं आएगा। अच्छा। और हैबिटेशन भी रहेगा और भी। हैबिटेशन भी नहीं आएगा सर। कॉन्ट्रैक्ट नहीं आएगा और हैबिटेशन नहीं आएगा। अच्छा जी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं आएगा और हैबिटेशन, बिल्कुल सही बता रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मुझे बताओ कि सोशियो इकोनॉमिक, अब मुझे बताओ, अब काफ़ी क्लोज हो आप लोग, बताओ आंसर क्या है? एंटिटी। एंटिटी इज द करेक्ट वर्ड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्योंकि हम पूरी तरह से क्या हैं? आज़ाद हैं। किस चीज़, किस मामले में? इंडिपेंडेंट हैं। अब मुझे बताओ, कोई भी राजा इंडिपेंडेंट डिसीजन लेता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है कोई भी चीज़, पावर कहो, सत्ता कहो, या फिर एग्जिस्टेंस कहो किसी चीज़ की, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि विलेज क्या है? एक वैसे क्या है? एंटिटी। यस और नो? ठीक है, ओके। तो आगे चलो, बताओ। सर एंटिटी मतलब उसका प्रेजेंस ना? प्रेजेंस, हाँ प्रेजेंस, बिल्कुल। सोशियो इकोनॉमिक प्रेजेंस, यस 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 यस। सोशियो इकोनॉमिक पावर, प्रेजेंस, जो कहना चाहो वैसा कर सकते हो। तो विलेज इन इंडिया यूज्ड टू बी एन इंडिपेंडेंट सोशियो इकोनॉमिक प्रेजेंस या एंटिटी बेस्ड ऑन ए डिसेंट्रलाइज्ड सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम बट नॉट ऑन ए 4 वर्ड्स दिए गए हैं: पॉलिटिकल, कॉम्पिटिटिव, सोशल, कोऑपरेटिव। बताओ, अब नॉट ऑन ए, अगर कोई चीज़ मना किया जा रहा है ना? क्या किया जा रहा है? मना किया जा रहा है, ठीक है, राइट। तो मुझे बताओ कौन सा वर्ड इसमें नहीं हो सकता है? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? देखो, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉम्प्लीमेंट्री? टेल मी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री? मतलब 2 चीजों को जोड़ना। साथ में कुछ उसके साथ में कुछ मिलना। सोच के बता दो भाई, सोच समझ के। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे का सिमिलर टाइप। देखिए, मतलब एक, जैसे हम बोलते हैं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना, तो मतलब परस्पर जिसको बोलते हैं ना, मानार्थ बोल सकते हैं, है ना, परस्पर, एक दूसरे ऊपर क्या, डिपेंडेंट, कहीं ना कहीं हम ऐसा टर्म यूज़ कर सकते हैं, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं एडिशनल बोलते हैं, एडिशनल, एक्स्ट्रा, है ना, बोलते हैं ना कि अभी आप हाँ, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक मिलता है। हाँ, रेस्टोरेंट में आप जाते हो तो अलग से कुछ है, तो सर कोई बात नहीं सर, ये चार्जेबल नहीं है, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री इन एडिशन टू दिस, ठीक है। तो ये तो खैर बड़ा सिंपल मामला था। तो मुझे बताइए कौन सा वर्ड यहाँ पे मोस्ट सुटेबल वर्ड लगता है आप लोगों को? कौन सा वर्ड ऐसा है जो नहीं हो सकता? अब मुझे बताओ, जब हमारा सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है, डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या है कि जो भी गांव का पंचायत बोलेगा वही काम होगा, बाकी कहीं बाहर से कोई परमिशन नहीं है, मिलजुल कर ही फैसला ले लेते हैं, यानी कहीं ना कहीं एक सिंगल सिस्टम नहीं है। क्या है? सेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है? एक सिस्टम, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब डिसेंट्रलाइज्ड है तो पॉलिटिकल आएगा कभी टर्म? बताओ जल्दी से, पॉलिटिकल टर्म आएगा? बोलो। नो आएगा। एंड ऑप्शन नंबर बी। अब मुझे बताओ और कौन सा वर्ड नहीं आएगा? ऑप्शन नंबर बी, कॉम्पिटिटिव। कौन सोशल सा? भी नहीं आएगा। सोशल भी नहीं आएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मुझे बताओ, जब डिसेंट्रलाइज सिस्टम है तो कोऑपरेटिव कैसे होंगे? जब सब तो अपना अपना सेंट्रलाइज्ड होता है तभी तो वो कोऑपरेट करते हैं ना। यस और नो? बोलो, क्लियर है कि नहीं? क्या कोऑपरेशन होगा कभी? कॉम्पिटिटिव इज द करेक्ट वर्ड। और कॉम्पिटिटिव का मतलब तो वैसे भी आप जानते हो,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव? बोलो। सर डबल वॉइस आ रहे हैं आपकी। कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या है भाई? देखो मेरी, Relating to characteristics, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ characteristics. कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या होता है? प्रतियोगी। मुझे बताओ, क्या Competition. एक गांव वाले दूसरे गांव वाले का अगर कोई डेवलपमेंट होता है तो उसके हिसाब से वो चलते हैं, है ना, कि वहाँ पर ये डेवलपमेंट हुआ तो हमें भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जबकि कोई सेंट्रल सिस्टम वर्क नहीं करता है। यस और नो? ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। सर किसी का माइक ऑन है माइक सर। ऑन है। कौन किया है? शेयरिंग वगैरह ना किया करो भाई। ओके, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट टर्म हमारा पैराग्राफ तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए, बट नॉट ऑन ए हमने क्या लगा दिया? फोर्थ नंबर पॉइंट हमारा क्या था? कॉम्पिटिटिव बट ए कॉम्प्लीमेंट्री, यानी हमारा कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर है, यानी एक दूसरे का क्या कर रहे हैं हम? कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक। चलो आगे बात करते हैं। इफ़ वन स्टडीज़, यहाँ देखिएगा, इफ़ वन स्टडीज़ इंडियाज़ हिस्ट्री ऑफ द पास्ट 200 डैश ईयर्स, बताओ अगर कोई इंडिया का हिस्ट्री पास्ट 200 और बीच में कौन सा साल होगा? ऑड, फ्यू, मोर, सम, बताओ कौन सा वर्ड यूज़ होगा? बोलो। फ्यू। सोच समझ के जवाब दो यार। आप एक बात बताओ। option number A, एक सेकंड वेट, it is मतलब expected है। कुछ बीच में देखो, एक बात समझो बात को। देखो जरा मुझे बताओ, ये जो 2 है, 3 है, 5 है, 200, ये काउंटेबल नाउन है अनकाउंटेबल नाउन है? बताओ, अरे बोलो। काउंटेबल। जब काउंटेबल नाउन है तो फ्यू कैसे यूज करेंगे हम? क्या कंपैरिजन हो रहा है जो हम मोर लगाएंगे? क्या हम कुछ जोड़ने की बात तो कर नहीं रहे? ऑड ईयर्स बोलते हैं ना, कभी कभी हम लोग कुछ अमाउंट परचेज करते हैं तो बोलते हैं कि मतलब इट विल टेक 5 ऑड डेज, 10 ऑड डेज। ऑड का मतलब वो सर किसी के माइक के वजह से आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। अभी आ रहा है आवाज? देखो तो, अभी ठीक है? अभी यस सर। मतलब इन लोगों को ना कॉमन सेंस नाम की चीज़ ही नहीं है। ओके, तो मुझे बताइए जरा समझिएगा, फ्यू जो है किसके लिए यूज़ करते हैं? क्या हम बीच में एक 2 काउंटेबल नाउन के साथ हम फ्यू वर्ड यूज़ करेंगे? 2 फ्यू ईयर्स, 200 फ्यू ईयर्स, बोलिए यूज़ करेंगे? 200 मोर ईयर्स, अरे बोलो 200 सम ईयर्स। ऑड का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग बचपन में मैंने भी पढ़ाया है, ऑड डेज, इट विल टेक 10 ऑड डेज, 20 ऑड डेज, 50 ऑड डेज। नहीं। ऑड का मतलब क्या होता है मालूम है आपको? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑड? ऑड का मतलब क्या होता है? यूनिक। ऑड का मतलब क्या होता है बताओ भाई? ऑड का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा। क्या? मतलब इन एडिशन टू। समझ में आ रही है बात? स्ट्रेंज। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अगर मैं ऑड डेज की बात करूंगा, ऑड डेज, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि ऐसा वर्ड जो हम आगे का हम श्योर नहीं कर सकते, जैसे 200, 215, 200। अगर मैं ऑड डेज ऑड ईयर्स, 200 ऑड ईयर्स, मतलब ऑड किसको रिप्रेजेंट करता है? व्हाट इज ऑड? ऑड इज ए क्या? एडजेक्टिव। ऑड क्या है? एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? अरे बोलो। यस। तो ऑड इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। तो इफ वन स्टडीज इंडियाज हिस्ट्री ऑफ द पास्ट 200 ऑड ईयर्स, स्पेशली व्हेन द ब्रिटिश केम, वन फाइंड्स द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट। तो
जब हम ब्रिटिशर्स की बात करेंगे तो हम असलियत पता लगा सकते हैं कि क्या इंडिया का हिस्ट्री था 200 साल पहले। आगे चलते हैं। द न्यू रूलर्स undid the very dash of rural society because they knew that India could not be dash unless the village was completely destroyed। चलिए बताइए, द न्यू रूलर्स undid the very, बताओ undid का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय द undid? ऐसा वर्ड यूज सुने हो पहले? undid का मतलब क्या होता है? नष्ट कर देना, बुरा, बर्बाद कर देना। What is the meaning? Undid is a negative word. What is the meaning of undid? Means destroy. What is the meaning of undid? Tell me. Spoil कर देना। समझ में आ रहा है? क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है। undid the very dash of, तो मुझे बताओ अगर undid वर्ड है तो मुझे बताइए 3rd नंबर पॉइंट पे कौन सा वर्ड ऐसा जो नहीं आ सकता? फैब्रिक। टेक्सचर और फैब्रिक। And soul. Option number D. ये soul is spirit. तुम बीच में ना बोलो अभी। हाँ भाई ठीक है, बोलो। टेक्सचर और फैब्रिक नहीं आ सकता। फैब्रिक सर। अच्छा, टेक्सचर, थ्रेड, फैब्रिक, सोल, कौन सा वर्ड जो है नहीं आ सकता यहाँ पे? तो मुझे बताओ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फैब्रिक? फैब्रिक का मतलब तुम लोग कपड़ा समझ रहे हो नहीं? हाँ भाई देखो, अब यहाँ पे कपड़ा का बात नहीं है, आपको ये समझना पड़ेगा। मुझे बताओ, जैसे हम बोलते हैं दो रिश्ते के धागे जो हैं वो टूटने नहीं चाहिए, तो मुझे बताओ क्या धागा से हम रिश्ता को जोड़ते हैं? बोलो। नहीं सर। लेकिन ये तो मुहावरा है कि देखो हमारे रिश्ते का धागा टूटना नहीं चाहिए, तो इसका मतलब कि सच में हम धागा लगा के रखे हैं क्या एक घर से दूसरे घर में? समझ में आ रही है बात? क्लियर है कि नहीं? तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है ना? तो थ्रेड का मतलब तो आपको पता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रेड? पन्ना। थ्रेड का मतलब क्या है? धागा। ये धागा मतलब कहीं ना कहीं एक कनेक्शन बोल सकते हैं, एक क्लू बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, उस अगला वर्ड है मेरा टेक्सचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक्सचर? टेक्सचर का मतलब क्या होता है? शेप। शेप, किसी चीज़ का क्या शेप, कैसा दिखता है, स्ट्रक्चर, डिज़ाइन। अब देखने में लगेगा टेक्सचर तो तुम लोग सोच रहे हो ग्लास का टेक्सचर है क्या? नहीं, डिज़ाइन, ठीक है, स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन, ये वर्ड है इसका, ठीक है। समझ में आ रही बात? ठीक है। फैब्रिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैब्रिक? नहीं आ रहा आपका। क्या हुआ? टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैब्रिक? फैब्रिक का मतलब क्या है? टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैब्रिक? फैब्रिक का मतलब कपड़ा तो होता है, लेकिन कपड़ा के अलावा इसका मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्ट। इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। मेक। डिड यू गेट माई पॉइंट? यस और नो? Yes, sir. Build. These are the terms which can be used, ठीक है। alright, next soul. What is the meaning of soul? And आत्मा। सोल का मतलब सिर्फ आत्मा कह रहे हो तो ठीक है, वो अलग बात है, बट आपको ये सोचना होगा कि आपको कोई जो वर्ड यूज किया गया है दैट मे और मे नॉट बी यूज्ड इन द सेम वे। सोल कैन बी यूज्ड एज द वर्ड लाइफ। सिनोनिम सोल का क्या है? लाइफ है। डिड यू गेट माई पॉइंट? यस और नो? Yes, sir. सोल का मतलब अगर हम और सिनोनिम्स में जाना चाहेंगे तो हम बोल सकते हैं विश, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं है। अब मुझे बताइए कौन सा वर्ड? ऑथोरेट का मतलब तो आप समझ ही गए हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं आपको। तो मुझे बताइए इसका आंसर कौन सा नहीं हो सकता? चलिए, सोल। सोल नहीं हो सकता, ठीक है। सर टेक्सचर भी नहीं होगा। सोल नहीं होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। टेक्सचर नहीं होगा, टेक्सचर भी नहीं होगा। टेक्सचर भी नहीं होगा, टेक्सचर बिल्कुल सही है। देखो, तो फैब्रिक राइट आंसर। फैब्रिक इज द करेक्ट आंसर। थ्रेड भी नहीं आएगा इसमें, क्योंकि थ्रेड में तो हम जोड़ने का काम करते हैं ना। थ्रेड क्या करता है? थ्रेड तोड़ने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है? बोलो। जोड़ने का।
जोड़ने जब जोड़ने का काम कर रहा है और अनडीड हो रहा है या डिस्ट्रॉय हो रहा है तो थ्रेड तो आ ही नहीं सकता। जब सेंटेंस निगेटिव है तो वर्ड पॉजिटिव कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? यस और नो? क्लियर है कि नहीं? लेकिन आपको ये समझ में आना पड़ेगा कि वो क्या कर रहे हैं कि जो रूरल सोसाइटी बने हुए थे उसको तोड़ने का काम कर रहे थे। यस और नो? जो बिल्ट अप सोसाइटी थी यानी जो बने हुए सोसाइटी थी उसको क्या कर रहे थे? तोड़ने की बात कर रहे थे। तो द न्यू रूलर्स अनडिड द वेरी कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रूरल सोसाइटी। तो रूरल सोसाइटी बनने जा रहा था, लेकिन वो क्या काम करते थे? उसको तोड़ने का काम करते थे। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? बोलो। मतलब अगर मैं बोलूँगा कि यहाँ पर जो बनने वाला था उसको तोड़ने के काम कर रहे थे तो इससे आप समझ ही गए होंगे। बिकॉज दे न्यू दैट इंडिया कुड नॉट बी डैश अनलेस द विलेज डैश वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। क्योंकि वो जानते थे कि इंडिया कुड नॉट बी ओवरकम ओब्टेन्ड हेल्ड कंट्रोल। मुझे इसका सिर्फ ग्रामर देख के बताओ कौन सा वर्ड नहीं आ सकता। ओवरकम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरकम? डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर आना, काबू पाना, है ना? मूव ऑन, ठीक है ना? कंक्वर, ओवरकम यानी क्या करना? कम आउट ऑफ द डिफिकल्टी। यस और नो? एकदम देसी टू मूव ऑन, ठीक है ना? मूव ऑन ये तुम देसी स्टाइल में बात कर रहे हो, यानी इसका मतलब कह सकते हो विन, जीतना। ठीक है, आप कह सकते हो कम आउट ऑफ द प्रॉब्लम, अगर एकदम बेसिक स्टाइल में अपन बात करें तो। दूसरा बोल सकता है कंकर। ठीक है, जैसे कोई कोरोना पॉजिटिव हुआ था और वो सही सलामत घर आ गया, तो दो चीज़ हो सकती है, या तो वो बीमारी से ओवरकम हो गया या वो जंग जीत गया कोरोना का। बोलते हैं ना ओवरकम फ्रॉम द सिकनेस, है ना? तो क्या हुआ? या तो वो जीत गया या ये तो इसके सिनोनिम्स हैं, तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि इट कैन बी यूज्ड इन द सेम वे। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्टेन्ड? ऑब्टेन्ड का मतलब तो है पाना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मिलना, जो भी आप कहना चाहो। हेल्ड का मतलब होना, कंट्रोल का मतलब कंट्रोल। ठीक है, अब मुझे बताइए इसमें कौन सा वर्ड है जो नहीं आ सकता? टेल मी विच कैन। ओवरकम, हेल्ड नहीं आएगा सर, हेल्ड ओवरकम भी नहीं। हेल्ड एंड ऑब्टेन, हेल्ड एंड ऑब्टेन नहीं आएगा सर, हेल्ड तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। हेल्ड और ऑब्टेन नहीं आएगा? यस सर। ओवरकम नहीं आएगा सर। सोच लो एक बार। ओवरकम नहीं आएगा। ओवरकम नहीं आएगा सर। देखिए समझिएगा बात को, एक बात बताओ, नहीं है। समझिएगा। होता क्या था, जब हम लोग, आप लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे, जो भी अगर यूपीएससी के कोई स्टूडेंट है तो इस बात को समझते होंगे कि हर बार हम लोग एक सोसाइटी बनाने की कोशिश करते थे, हमारे क्रांतिकारी लोग, और लेकिन ब्रिटिशर्स लोग क्या कर देते थे? उसको तोड़ देते थे। याद है आप लोगों को? यस और नो? जब भी ग्रुप जलियांवाला बाग में हम लोग मीटिंग कर रहे थे, इनको भगाना है भगाना है भगाना है, ये क्या करते थे? जनरल डायर ने बंदूक चलाना शुरू कर दिया। जब भी हमारे लोग कुछ अच्छा करना चाहते थे, ये क्या करते थे? उसको तोड़ देने की कोशिश करते थे। लेकिन Yes. यही तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना कि बिकॉज दे न्यू दैट इंडिया कुड नॉट बी, इंडिया तब तक नहीं जीत सकता, कुड नॉट बी, राइट? ऑब्टेन्ड, हेल्ड, कंट्रोल, ये तीनों वर्ड कैसे हैं? वर्ब का सेकेंड, वर्ब का सेकेंड, वर्ब का सेकेंड फॉर्म कैसा लगेगा? कुड नॉट बी, ऑब्टेन्ड आएगा या वर्ब का फर्स्ट सर फॉर्म आवाज आएगा? नहीं आ रहा। आवाज़ नहीं आ रहा है? आ रहा है बाकी लोग को? सर आवाज नहीं आ रहा आपका। आ रहा Yes, sir. है? अभी आ रहा है सर। हाँ ठीक है, तो मुझे बताओ ऑब्टेन्ड, हेल्ड और कंट्रोल ये तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और कुड नॉट बी, बी क्या होता है? बी तो फर्स्ट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ऑक्सिलरी वर्ब का। यस और नो? तो उसके बाद तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आना चाहिए, ये तो आपको कॉमन सेंस भी लगा सकते हो आप। कुड नॉट बी ऑब्टेन्ड, हेल्ड, कंट्रोल्ड। तो मुझे बताओ कि यहाँ पर अगर हम ग्रामर देखते तो भी आप समझ लेते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ठीक है। तो मुझे बताइए कि यहाँ पर कौन सा वर्ड मोस्ट सुटेबल है, या फिर कौन सा नहीं हो सकता है? कुड नॉट बी कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड वर्ड आएगा कभी? जल्दी बताओ। हाँ जी, यस और नो? नो, नो, कंट्रोल वर्ड नहीं आया। कुड नॉट बी हेल्ड, कुड नॉट बी हेल्ड, कुड नॉट बी ऑब्टेन्ड, कुड नॉट बी ओवरकम। बोलो।
वो तो मैंने वैसे ही बता दिया। हेल्ड नहीं आएगा। हेल्ड नहीं आएगा। अब ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड तो ऐसा हो गया जो चीज़ हमें मिल रहा है, बट यहाँ तो हम क्रिएट कर रहे हैं। क्या हमें कुछ ओवरकम इज द आंसर। ओवरकम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट को आगे देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम आगे की बात समझ लें। 10 7 हो गया हमारा। हाँ ठीक है, अनलेस द विलेज, वो आने वाला है यहाँ पे। ठीक है, द न्यू रूलर्स अनडिड द वेरी क्या लगाया था पॉइंट, बोलो। अरे 6 नंबर पे क्या लगाया था, भूल गए क्या तुम लोग? फैब्रिक। वही मैं कंफर्म कर रहा था, तुम लोग भूल रहे हो। वेरी फैब्रिक ऑफ द रूरल सोसाइटी बिकॉज दे न्यू दैट इंडिया कुड नॉट बी डैश ओवरकम ऑफ रूरल सोसाइटी बिकॉज दे न्यू इंडिया कुड नॉट, ये हो गया ना, अनलेस द विलेज डैश वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। बताइए 8 नंबर। सर ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं। हाँ दिख रहा है ना, देखो बोलो कौन सा वर्ड है। सोसाइटी का मतलब क्या होता है, समाज, ग्रुप, स्ट्रक्चर, कोऑपरेटिव। इसमें कोई ऐसे वर्ड नहीं है जो तुम लोगों को पता नहीं है, तो बताओ जल्दी बोलो। स्ट्रक्चर में भी द आंसर। स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। वेरी स्ट्रक्चर नहीं, वेरी कहाँ गया, ये हो गया। कुड नॉट बी, ये हमने कर लिया। अनलेस विलेज स्ट्रक्चर, तो विलेज का पूरा स्ट्रक्चर ही खराब कर देना चाह रहे थे वो, राइट? यस और नो? विलेज का पूरा स्ट्रक्चर खराब करना। कोऑपरेटिव लाइफ, विलेज लाइफ का क्या है, ऐसी बात नहीं, स्ट्रक्चर बर्बाद करना चाह रहे थे, सोसाइटी की बात नहीं। स्ट्रक्चर इज द करेक्ट। सर मैं थोड़ा लाइफ में और स्ट्रक्चर में कंफ्यूज। देखो विलेज लाइफ का मतलब क्या होता है, विलेज में किस तरह से लोग रहते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब है बिगाड़ देना, होलिया बिगाड़ देना, पैटर्न बिगाड़ देना, जिस तरह से गांव वाले लोग रहते हैं, एक दूसरे का मदद करते हैं, है ना। लेकिन विलेज लाइफ तो, लाइफ से ये क्लियर नहीं होता कि चीज़ें अच्छी हो रही है निगेटिव हो रही है, बट स्ट्रक्चर से ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से पहले था उसको हम बिगाड़ना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, है ना। ये बात से आप चीज़ों को, ठीक है, समझ में आ रही है बात, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, क्लियर है सर। चलिए आगे बात। दस इट इज़ दैट द ईस्ट इंडिया कंपनी इंट्रोड्यूस्ड डैश प्रोडक्शन इनटू विलेज लाइफ एंड कंसिक्वेंटली स्मैश्ड इट्स सिस्टम ऑफ कोऑपरेशन एंड, चलो बोलो जल्दी से कौन सा वर्ड है जो नहीं सेंट्रलाइज्ड आएगा सर, सेंट्रलाइज्ड आंसर ऑप्शन नंबर ए। सोच समझ के जवाब दो। हाँ सर, ऑप्शन नंबर ए आंसर रहेगा। अरे यार वो तो चाहते ही नहीं थे सेंट्रलाइज्ड करना। वाइट कमाल है, तुम लोग देख रहे हो जब आगे का वर्ड वर्ब का एक सर कंट्रोल्ड आएगा। खुद कॉमन सेंस लगाओ, 1 मिनट। जब आगे मैंने तुम लोग को पहले बोला आगे का वर्ड वर्ब सेकंड है तो उससे पहले वाला वर्ब सेकंड ही होना चाहिए ना। तो ये देखो वाइड अनफेयर, सेंट्रलाइज्ड में तो सेंट्रलाइज सिस्टम को तो बिगाड़ के रखे थे, वो कंट्रोल करना चाहते थे, तो कंट्रोल इज द करेक्ट आंसर, सेंट्रलाइज नहीं आएगा। ठीक है, अरे पहले ही जब तुम्हारे डिसेंट्रलाइज सोसाइटी बोल दिया है फिर भी तुम सेंट्रलाइज लगा रहे हो, तो इससे बड़ा बेवकूफ़ी तो हो ही नहीं सकती धरती पे कि तुम गलती कर रहे हो ऐसा। हाँ भाई, सही बात है कि नहीं? पहले जब डिसेंट्रलाइज्ड वर्ड यूज़ किया गया है उसके बाद तुम फिर से सेंट्रलाइज्ड वर्ड यूज़ करोगे क्या? हैं? जब पहले पैराग्राफ में ऑथर ने ही लिख दिया कि डिसेंट्रलाइज्ड वर्ड, अब फिर से तुम सेंट्रलाइज्ड यूज़ कर रहे हो, कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब आता है हमारा लास्ट आखिरी वर्ड, टुगेदरनेस। हाँ, तो मुझे बताइए, दस इट इज़ क्लियर इट इज़ दैट द ईस्ट इंडिया कंपनी इंट्रोड्यूस्ड प्रोडक्शन, ये तो हो गया, कंट्रोल प्रोडक्शन इनटू विलेज लाइफ एंड कंसिक्वेंटली स्मैश्ड सिस्टम कोऑपरेशन एंड डैश, बताओ बोलो। तो बहुत आसान है, कोऑर्डिनेशन। वेरी गुड, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब ना क्या करें, ना एक दूसरे को कोऑपरेट कर पाए, ना ही वो कोऑर्डिनेट कर पाए। एक बात और बताता हूँ, देखो ये जो हम जब किसी वर्ड में ION जोड़ते हैं ना, तो हमें कोशिश ये करनी है कि अगला वर्ड जो आए ना वो ION वाला ही आना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं फाउंड, फाउंड क्या है, वर्ब है,
यस और नो। अब हम फाउंडेशन बना देते हैं तो ये नाउन बन जाता है, यस और नो। हालांकि पता नहीं मुझे बताया था कि नहीं बताया था आपको, जब हम ION लगाते तो ये क्या बन जाता है, नाउन। ठीक है, तो अब जब यहाँ पे नाउन से शुरू हुआ है तो ख़त्म भी नाउन पे होना चाहिए, यस और नो, बोलिए यस और नो। तो कोऑपरेशन एंड क्या, कोऑर्डिनेशन, यानी वो क्या बिगाड़ना चाहते थे कि एक दूसरे से वो कोऑपरेट ना कर पाए और कोऑर्डिनेट ना कर पाए, तो कोऑर्डिनेशन इज़ द करेक्ट वर्ड। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ में आया बात, यस और नो। यस तो अभी हम लोगों को इतना ही रखना पड़ेगा, बाकी हम लोग जीके का लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि 5 मिनट ब्रेक रखना ज़रूरी है, बहुत सारे स्टूडेंट आ नहीं पाते हैं। ठीक है, चलो बाय। ओके सर, बाय। So we have covered the topic close test today. We have discussed the topic close test today. Those who are new to this channel, subscribe to this channel and share with your friends. You can join the Telegram channel also by typing English by Ravi Ranjan sir or Ravi Ranjan sir English. You will get a screenshot and a PDF. I've already shared here. So you must press the bell icon for getting the next update of this quiz test. So this is Mr. Ravi here signing off. Thank you.